This lecture will make you conceptually very sound, but in order to achieve perfection with concepts and writing practice, you need to watch the comprehensive lecture. Division of work. As per this principle, the work need to be divided into smaller tasks or jobs, and each job must be carried on by some specialist. This will lead to specialization, which results in increase in efficiency and effectiveness. Based on this principle, there are separate departments in a company, for example, finance, production, sales, marketing, human resource, and all of them have specialized persons. As per Henry Fayol, this principle of division of work and specialization can be applied to both technical as well as managerial work or job. Now, the secret of this point. इसको जैसे ही पढ़ेंगे आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप की भी याद आनी चाहिए, बिकॉज फंक्शनल फॉर्मेनशिप वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. Principle of authority and responsibility. As the management is the art and science of getting things done from other, therefore the manager need to have the power or right to give orders. This is authority. Authority is the right to give orders, and the outcome of this authority is responsibility. That is, responsibility is a corollary of authority. क्योंकि आपको पावर मिला है काम करवाने का, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि वो काम होना चाहिए. तो responsibility is the outcome of authority. There are two types of authority: official authority and personal authority. Official authority is connected with the position a manager represents, and the personal authority is related to the personal qualities of a manager, individual manager. There are two types of authority: formal as well as informal. The authority arising out of the formal organizational structure is formal authority, and from informal organization it is informal authority. It is very important that there should be a balance between authority and responsibility, a proper balance. Reason? किसी मैनेजर के पास अथॉरिटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मिसयूज हो सकता है. देयर कैन बी अब्यूज ऑफ मैनेजरल पावर. लेकिन अगर किसी मैनेजर के पास अथॉरिटी कम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो दूसरों से काम करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पावर. दिस अथॉरिटी गिव्स द मैनेजर द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट, बट ऑब्वियसली आफ्टर गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस. नाउ द सीक्रेट पॉइंट. One term is authority, second one is responsibility, third one is accountability. Many a time these are used interchangeably, particularly responsibility and accountability. But there is a thin line of difference. Authority means power, किसी से काम करवाने ऑर्डर देने का पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी है, आपको पावर है काम करवाने की, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपको काम करवाना पड़ेगा. अल्टीमेटली काम हुआ कि नहीं हुआ उसके तरफ आंसरेबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी. किसी मैनेजर को टास्क मिला कि आपको 500 यूनिट्स आज प्रोड्यूस करवाने हैं वर्कर से, तो उनको पावर मिला कि आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वर्कर्स को, तो दिस इज अथॉरिटी पावर. अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मैनेजर की कि इंश्योर करे कि वो टारगेट पूरा हो. टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ उसके तरफ जवाबदेही उसी की है, आंसरेबिलिटी उसी की है, इज अकाउंटेबिलिटी. प्लीज नोट दिस, द राइट टू पनिश, ये फिर से आएगा दूसरे प्रिंसिपल्स में भी. दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस और द कंप्लायंस ऑफ द रूल्स एंड द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. सिंपली मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट को भी और एम्प्लॉयज को भी उन रूल्स और उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करना चाहिए. इट इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स. इन केस अगर नहीं होता है तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं. नाउ द सीक्रेट ऑफ दिस प्रिंसिपल. पेनल्टीज यहां पे भी मेंशन है. इन द प्रीवियस प्रिंसिपल the word was punish. In this, the word has been used penalties, but the emphasis is on rules and agreement. Principle of unity of command. According to Henry Fayol, there should be one and only one boss for every individual. किसी भी इंडिविजुअल को एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए और उसी की तरफ वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए.
अदरवाइज ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होगा तो उससे कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी ने बोला कि पढ़ने जाइए, पापा ने बोला कि खेलने जाइए, उसी समय बोल रहे हैं दोनों, अब बताइए फंस गए आप? मुझे मालूम है आप किसकी बात मानेंगे। Therefore, each and every worker should receive order from and be responsible to only one superior. If this unity of command is violated, then authority is undermined, discipline is in jeopardy, and order disturbed and stability threatened. Unity of command resembles military organization. वहीं से इसकी शुरुआत होती है। The principle of unity of direction. As per this principle, if there are various division or units in an organization, all should move towards the same objectives in a coordinated and focused way. And each unit or each division or each group of activity should have one head and one plan. And this will ensure unity of action and coordination. अगर सारे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, सारे डिवीजन का एक ही हेड होगा तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक डिवीजन का एक हेड होना चाहिए। तो ऐसे 3 डिवीजन है तो 3 हेड होने चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार्स, तो मोटरसाइकिल का डिवीजन का कोई और हेड होना चाहिए, कार के डिवीजन का कोई और हेड होना चाहिए, क्योंकि इनके मार्केट्स, इनका काम करने का तरीका, ये सब अलग अलग हैं। ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ 2 डिवीजन ओवरलैप ईच अदर। सीक्रेट रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल, वन हेड वन प्लान। In the previous principle, there was one individual and one boss. In this, one head, one plan. The previous principle, unity of command, was related to worker, individual worker, and this one is related to a unit or group of activity. Principle of subordination of individual interest to general interest. This simply means that general interest should get priority over the individual interest. In any organization, the employee or management join an organization to satisfy their personal objectives and goals. So, on one hand, there are personal objectives and goals, and on the other side, there are organizational goals and objectives. Management should try to achieve both organizational goals as well as personal goals. लेकिन अगर ये possible नहीं हो पाए, then organizational goals should get the priority over the personal goals of the employees. Reason? Employee तो एक है, organization से तो लेकिन जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। Employee हैं, management है, suppliers हैं, investors हैं, customers हैं, society है। तो एक के खातिर बाकी सबकी कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन सबके खातिर एक की कुर्बानी चल सकती है। एग्जाम्पल, अभी वायरस फैला हुआ है, बहुत सारे बिजनेसेस की हालत ख़राब है, फंड्स नहीं है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी पे करनी है, लेकिन पैसे ज़्यादा हैं नहीं कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करे? अगर एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स को देखा जाए तो उनको तो पैसे चाहिए, लेकिन दूसरे साइड कंपनी को जिंदा रखने के लिए वो फंड्स बचा के रखने पड़ेंगे। नहीं तो अगर वो फंड्स भी यहाँ पे खर्च हो गए तो फिर आगे की एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी। अब क्या किया जाए? अनफॉर्चुनेटली अभी ये बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम किया जा रहा है, बट इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जुड़े हुए केवल एम्प्लॉय नहीं हैं, बहुत सारे और ज़्यादा लोग हैं। सो लार्जर इंटरेस्ट शुड गेट द प्रेसिडेंस। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दिस प्रिंसिपल क्लियरली स्टेट्स दैट the pay and compensation to the employees must be fair, and that should ensure a reasonable standard of living for the employees. But this should also be within the paying capacity of the company. So overall the pay and compensation should be just and equitable. This just and equitable remuneration will ensure congenial atmosphere and good relations between the worker and management, and the working of the company would be smooth. Now the secret about this point. Look at this. Good relations. Congenial atmosphere. इससे पढ़ के आपको याद आएगा harmony not discord. लेकिन इसमें गुड रिलेशंस के बारे में बात नहीं की गई है, इसमें बात की गई है पे एंड कॉम्पनसेशन के बारे में बात की गई है।
ये अगर सही हुआ तो ये होगा ऐसा। तो एम्फेसिस किया गया है पे एंड कॉम्पनसेशन के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज दिस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? This is connected to the decision making authority. If the decision making authority is concentrated only with few individuals in an organization, we say there is centralization. And if it is dispersed or the decision making authority is distributed or dispersed among many, then we say there is decentralization. As per Henry Fayol, there should be a proper balance between the centralization and decentralization depending upon facts and circumstances. Generally speaking, in case of large organization, decentralization is more as compared to small organizations. Suppose these are different places on a highway. You are at this point E. You need to visit point O, then you will move towards D, then to C, B, A, L, M, N. अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे O पे, योर टारगेट, राइट। इसमें टाइम एनर्जी एफर्ट बहुत ज़्यादा लग गया, रूट लंबा था, तो सर डायरेक्टली क्यों नहीं O पे पहुंचे? यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। सर टेम्प्रेरी बना हुआ हो तो इमरजेंसी में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रूट बना हुआ है नॉर्मल, इसी का यूज़ करते हैं। इसको कहा जाता है स्केलर चेन। एंड ये जो इमरजेंसी के लिए बनाया गया है इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। क्यों? जस्ट वेट एंड वॉच। ये जो शिप से उतरते हैं, कैसे उतरते हैं शिप से? ये जो है ये गैंग प्लैंक है। वैसे ही शिप में चढ़ने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये गैंग प्लैंक है। क्यों इसको प्लैंक बोला जाता है? प्लैंक मतलब पट्टा या पट्टी। और गैंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। इतना सिंपल है सर। तो इसका इस प्रिंसिपल से क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सपोज ये है CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हैं डिपार्टमेंटल हेड, उसके नीचे ये हैं मैनेजर्स, उनके नीचे ये हैं असिस्टेंट मैनेजर्स, ये हैं सुपरवाइजर्स एंड ये हैं वर्कर्स। देयर्स अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। ए बॉस है, उसका सबऑर्डिनेट बी। एज बिटवीन बी एंड सी, बी बॉस है, सी सबऑर्डिनेट है। तो ए सुपीरियर, बी सबऑर्डिनेट, बिटवीन बी एंड सी, बी सुपीरियर, सी सबऑर्डिनेट एंड सो ऑन। अब एक दूसरे को वो डायरेक्शंस देते हैं और इस तरीके से मूव होता है एंड फीडबैक फिर नीचे से ऊपर आता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन मूव होता है। तो सपोज ई को कम्युनिकेट करना है ओ से, तो जो लाइन बनाई गई है फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी, उसके हिसाब से तो ई को पहले बताना पड़ेगा डी को, अपने सुपीरियर को, डी अपने सुपीरियर को बताएगा सी को, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, फिर ए अपने सबऑर्डिनेट एल को बताएगा, एल एम को बताएगा, एन को बताएगा और एन ओ को। इसमें टाइम एनर्जी एफर्ट्स लग जाएंगे। तो अगर इमरजेंसी हो तो वैसे तो क्योंकि ये लाइंस बनाए गए हैं तो इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऐसे लाइन ही क्यों बनाए गए हैं? कॉमन सेंस। अगर ये लाइन नहीं होता, डायरेक्टली ई ओ से बात करके आपस में ही डिसीजन ले लेते, तो उनके सुपीरियर्स को कैसे पता चलता कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया है? तो हर एक बॉस को पता होना चाहिए कि उसका सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है। देयरफॉर ई को बताना पड़ेगा डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एफर्ट्स लग जाएंगे, टाइम लग जाएगा। और इमरजेंसी हो तो फिर एक्सेप्शनल केसेस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये जो लाइन बनाई गई थी, नॉर्मल लाइन जिसको फॉलो करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, उसको कहा जाता है स्केलर चेन। और इमरजेंसी में अगर अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेशन अगर अलाउ करना हो तो इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। लेकिन ये इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट गैंग प्लैंक का यूज़ डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। एफ वर्कर है,
उसको डायरेक्टली सीईओ से बात करनी है तो गैंग प्लैंक का यूज़ करके डायरेक्टली बात कर सकता है, बट इन एमरजेंसी। और एमरजेंसी के भी फिर कैसे ये यूज़ किया जा सकता है उसका भी सिस्टम बनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, people and materials must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। इस प्रिंसिपल को बड़ी सिंपल तरीके से बोला जा सकता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अगर ऐसा हो, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए जगह हो और सभी चीज़ें अपनी जगह पे हों, तो ऑर्डरलीनेस आता है, सिस्टमेटिक काम होता है, हिंड्रेंसेस नहीं होते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ती है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज घर पे कोई फिक्स, कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं हो मोबाइल या चाबी रखने का, और कहीं पे भी रख दें तो अचानक से मोबाइल और चाबी की ज़रूरत पड़े तो कैसे हम भटकते रहते हैं इधर उधर, टाइम वेस्ट होता है, कैसी हालत होती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन चीज़ों को रखने का कोई जगह फिक्स नहीं था, राइट। सपोज जगह तो फिक्स है कि मोबाइल रखने की ये जगह है, लेकिन अगर हमने नहीं रखा उस जगह पे जो डेजिग्नेटेड है उन चीज़ों के लिए, तो भी प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब है जगह ना हो, प्रॉपर जगह ना हो किसी चीज़ के लिए, तो भी प्रॉब्लम होगा। और जगह तो प्रॉपर है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन हमने रखी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और ये केवल चीज़ों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी है। तो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, दैट इज एवरीवन। एवरीथिंग ये हो गया मटीरियल्स, एवरीवन पीपल, एंड एवरीथिंग और एवरीवन इन इट्स और हर प्लेस। Principle of equity. Principle of equity states that each and every employee must be treated fairly with kindliness and justice, and there should be no discrimination against anyone on any ground. In fact, equal opportunities must be given to all the employees. This will increase their loyalty and devotion and will reduce the employee turnover, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। बट इक्विटी का मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स का यूज़ ना करें। इनफैक्ट इक्विटी ये भी कहता है कि अगर कोई लेज़ी पर्सन है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो पनिश भी करना चाहिए, ताकि एक लेसन जाए कि मैनेजमेंट के सामने सब इक्वल हैं, किसी को भी अलग से कुछ गलत तरीके से फेवर नहीं किया जाएगा। नाउ वन सीक्रेट अबाउट दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे भी पनिश करने की बात की गई है इनडायरेक्टली, बट द मेन फोकस इज फेयरनेस, काइंडलीनेस, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. This principle simply states that each and every member of the organization must be selected and appointed after due and rigorous procedure, ताकि सही पर्सन को सिलेक्ट किया जा सके, अपॉइंट किया जा सके। एंड once selected they must be given a minimum fixed tenure. मिनिमम क्यों? कम से कम कुछ टाइम तो उनको देना चाहिए, क्योंकि अचानक से उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशलाइजेशन आएगा तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। उनके लिए कुछ मिनिमम टाइम तो उनको देना ही पड़ेगा, ताकि वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो अपना परफॉर्मेंस शो कर सकें। सो दे मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल टाइम, और अगर नहीं दिया जा सके तो मैजिक की उम्मीद नहीं कर सकते हम। इन दैट केस स्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे, और जिससे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना जरूरी है फॉर द बिजनेस। इन रियलिटी ऑल्सो, सचिन तेंदुलकर क्या एक ही मैच से सचिन तेंदुलकर बने थे? विराट कोहली या MS धोनी? हर एक प्लेयर को एक मिनिमम टाइम मिला परफॉर्म करने का, अपने पोटेंशियल का अच्छे से अच्छा यूज़ किया, और ओवर अ पीरियड वो ग्रेट प्लेयर्स बने हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन. टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन.
This principle clearly states that workers should be encouraged to develop and carry. प्लान बनाएं एंड खुद ही उसको फॉलो करें. To develop and carry out their plans for improvement. This will encourage the innovation. लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि कुछ नया ही करें और जो established practices हैं उसको भूल जाएं. This simply means एम्प्लॉय अपना सजेशन दें, अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, और अगर उनका सजेशन काम आ गया, उनका इनोवेशन इनिशिएटिव काम आ गया, तो उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प. दिस मीन्स द टीम स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस. मैनेजमेंट शुड प्रमोट दिस टीम वर्क, otherwise objectives would be difficult to realize and it will result in the loss of coordination among all. Managers should replace the I attitude with the we approach, and this will foster the team spirit. This will also result in the minimization of need for using fine, penalties and punishments. Now, the secret about this point. In this principle also the word penalties has been used, but in different context. In the principle of authority, it was mentioned that manager अपनी authority का use करके कई बार punish करता है, penalties लगाता है employees के ऊपर. In the principle of discipline, the same fine, penalties, punishment was used, but उसमें था डिसिप्लिन लाने के लिए फाइन पेनल्टीज का यूज़ किया जा सकता है, बट सोच विचार के. और यहाँ पे मेंशन किया गया है अगर हम टीम स्पिरिट को बढ़ा सके तो पेनल्टीज का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मिनिमाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. सेम वर्ड, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट.